Hello everyone, how are you? Myself, Professor Vibha Lakoti. Today we are going to discuss the topic of dimensions, which is the most important part of physics. Every physical quantity which we want to discuss or which we want to describe, it should be described with the help of its units and dimensions. So, dimension is the most important topic we want in our physics subject, and today we are going to discuss that topic. So let us see what is dimensions. Actually, we know what are the units. There are two main types of unit: fundamental unit and derived unit, and there is one another supplementary unit. We already discussed, or it is explained in our textbook also. There are basic 7 fundamental units and 2 supplementary units, and there are number of derived units. That all we know. We know the various different system of units also, like CGS system, MKS system, FPS system, SI system. These are the different units of system, and also the rules of writing SI unit we all already know. So in today's video we are going to study the dimension. Now what is actual meaning of dimension? The unit or the power raised of units. Like suppose there is a meter square, means there is a square to the unit. This raised power is explained in terms of dimensions. There are mainly 3 main fundamental units: length, mass and time. Then this length, mass and time is expressed in terms of dimensions. So let us discuss how it will be written. Okay. Now whenever you want to write dimension, its bracket should be like this square bracket, not like a curved bracket, not like a round bracket, not in forms of mod. Okay. These 3 all brackets are not allowed. One and only one, this square bracket, is applicable or compulsory to write the dimensions. Now dimensions, we know the 3 main fundamental unit: length, mass and time. Then L for length, M for mass and T for time. There should not be any punctuation mark within this bracket, like comma or full stop. This nothing, no punctuation mark is allowed in this bracket. You should give just a single space within the letters, and all 3 letters should be capital, not a small like this L, M, T. This is not applicable. Okay, so this is the rules of writing dimensions. Now suppose let us discuss the first main fundamental unit, length. Okay, the SI unit of length is meter. Okay, and its symbol is small m. Okay, now look at here. The meter have power. If it is not given, means you have to power 1. Okay, here in the dimension, if you want to calculate the dimension of length, then its unit become 1 and its power become 1. Then the dimension of length, this L is for length, and you have to write in the pattern of dimension LMT. Here you know that M, that is length. This is not a mass. Don't get confused. It is a unit meter, and meter have power 1. So length have power 1. Here mass is absent. During the measurement of length, you don't need any type of mass. Okay, so mass is absent, so its power become 0, and time is also absent, so its power become 0. And you have to read it as a L1, M0, T0 is the dimension of length. Okay, don't read like L to the power 1, M to the power 0 or T to the power 0. You have to write L1, M0, T0. In some textbooks, or if you refer various notes, then you can see that if
the power is 0, then it is only express the elements having power. That is the dimension of length. You can write also L1 only, because m is 0 and t is also 0. Then L1 is the dimension of right. But in proper way, for the board examination, if you are going to appear the questions and most asked question that any one dimensions you can ask, और आपको वो अटेम्प्ट करना ही होगा कि कहीं ना कहीं आपको यूनिट्स और डायमेंशंस पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम में. तो ये कहीं बुक्स में दिए हैं, कहीं पे बोर्ड में अलाउ नहीं है. तो बेटर वे यू हैव टू राइट, इट इज द परफेक्ट वे टू राइट द डायमेंशंस. ओके, कैसे लिखा है हमने? जैसे लेंथ का यूनिट मीटर है, मीटर को पावर 1 है, तो लेंथ का पावर कितना है? 1. तो हमने लिखा L1. मास नहीं है यहाँ, सो पावर 0. टाइम नहीं है यहाँ, सो 0. मीन्स द dimension of length is L1 M0 T0. Read in such manner. Okay. Now let us discuss about the power of the dimension of mass. Then what is the dimension of mass? Unit of mass. The mass is SI unit become kilogram. Okay. Then it is having just power 1. Okay. Then the dimension of mass. What is this? The dimension of mass is, you have to write L M T. Okay, and in this L M T, L is not present here, length is absent, so L is 0. Mass is present here, it's having power 1, then M1 and T 0. This is the dimension of mass. Let us discuss about time. Time having the unit second. Okay, and its power become, just you can write this as S and to the power 1. Okay, so the dimension of time become L0 because length is not present here. Mass is also 0 and time become having power 1. These are the general for taking the unit which doesn't have power. Okay, that is length, mass and time. So now let us discuss about the another unit which have power, having unit with power. Okay, let us discuss area. Area. Suppose you are going to calculate the area of square. Then the unit for area of square become, what it will become? It is meter square. Okay, now look at here. There is a power to the unit and it is expressed in terms of dimension. Then the dimension of area. Look at here. जब भी आप डायमेंशंस लिखते हैं तो उसके LHS में जो अल्फाबेट्स या जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको आपको इसी स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है और उसके बाद में उसके इक्वल में LMT इस तरह से हमें लिखना है. अब देखिए यहाँ पे लेंथ है उसका मीटर है. अब ये मीटर स्क्वायर है, मींस मीटर इनटू मीटर ऐसा हो गया, यानी 2 बार लेंथ यूज की है. उसका पावर कितना है? 2. सो यू हैव टू राइट हियर 2. हियर मास इज एब्सेंट, सो M0 T0. देन द डायमेंशन ऑफ एरिया बिकम L2 M0 T0. Okay, let us discuss about volume. Then its unit become meter cube. Okay, so how it can be written as dimension of velocity is equal to L M T. Okay, and you have to write in such manner. Mass having power, length having power 3, so L3. Mass is absent here, so M0. Time is absent here, so T0. That is the dimension of area and volume. Again, we can use the derived quantity. Okay, suppose derived quantity में हम लेते हैं velocity. Okay, now look at the formula of velocity. How velocity is defined as? Velocity is displacement upon time. That is rate of change of displacement is called velocity. So you can write the formula as velocity equal to displacement upon time. Now the unit of displacement is meter and unit of time is second. Now in numerator
numerator there is a meter having power 1 and in denominator there is a second having power 1. We just rearrange it by keeping this denominator in the numerator, then meter to the power 1 and second to the power minus 1 it will become. Okay, so the dimension of velocity becomes, look at here, now this is something new for you, LMT. Length is present here, meter having power 1 means L1. Mass is absent here, so power becomes 0. And time is present here but having power minus 1. So you have to write here minus 1. And you should read it as a L1 M0 T minus 1. Not like T upon minus 1 or 1 upon T. You don't have to write. You are just representing its power and represent its power. That is the one of the thing of dimensions. Let us again discuss another topic like acceleration. Okay, so acceleration is defined as, it is defined as velocity upon time. Okay, now velocity upon time means its unit become meter per second square. Okay, then it will become minus 2 when this denominator we keep it in numerator, then it will become m1 s minus 2, and then the dimension of acceleration become, mass become 1, length become 1, mass become 0 and time become minus 2. This is the dimension of acceleration, that is L1 m0 t minus 2. In such way you can calculate dimension of any physical quantity. It may be fundamental or it may be derived unit. Okay, कोई भी यूनिट अगर आपको दिया है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जब आप लेते हो तो वो फिजिकल क्वांटिटी को आप इस तरह से डायमेंशन के फॉर्म्स में आप लिख सकते हैं। और डायमेंशन के फॉर्म में लिखते वक्त सिर्फ ध्यान रखना है कि कोई पंक्चुएशन मार्क्स नहीं होना चाहिए, ब्रैकेट स्क्वायर ही होना चाहिए, ये लेटर्स सिंगल स्पेस के साथ में अल्फाबेटिक कैपिटल ही होना चाहिए, और इनके पावर जब आप रीड करोगे तो टू दी पावर ऐसा रीड नहीं करना है, जस्ट L1 M0 T minus 2 इन सच मैनर यू हैव टू रीड इट। आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? अगर आपको मेरा समझाया हुआ पसंद आता है then please like that video, and if you have friends, family members which are in the same class or studying in 11th class in physics, then you can share my video with them also to clear the concept of some basic concepts of physics like dimensions. Okay, now these are the basic concepts. Again, for more practice, let us more derive the formula. Let us derive the formula for force. Okay, see it here. Force. The formula for force is mass into acceleration. Okay, now what is the unit of mass? Kilogram. Okay, what is the unit of acceleration? Meter per second square. Then it will become kilogram, meter and second to the power minus 1. Now look at the power. Kilogram having 1, meter having 1 and time having minus 2, that is second. Then the dimension of force become, how it will become? Now L, M, T. Okay, now what is L? Length. Length having power 1. Mass, yes it is present, having power 1. And time is also present, having power minus 2. Then the dimension of force become L1 M1 T minus 2. Whether you got it? Okay. In such manner, you have to make a maximum practice to derive the maximum dimensions of all physical quantities you know or which are in your textbook. And to tally it, I will give the screenshot of some dimensions of physical quantities with its dimension and SI unit at the last of this video. So you have to keep its screenshot and you have to write in your diary or book. Or otherwise, if you not get it, then there is log table, you know, log table which is very much important in physics. If you don't have, you should buy from the any
bookstore which is maybe of any company like Reliable, Navneet, and of any company, the all lock tables are same. So you should see that at the last page of that lock table there is a various physical quantities, or maybe fundamental or maybe derived. There are number of quantities expressed with its units, dimensions and symbols also. So you first derive manually by yourself with knowing all the formulas, and then you just tally from that log table. Okay, so this is about the dimension. Now what are the drawbacks of dimension? अभी तक हमने जो डिस्कस किया कि हम उसके पावर एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन इसके ड्रॉबैक क्या है, इसकी लिमिट्स क्या है कि जिसकी वजह से हम डायमेंशंस यूज नहीं कर सकते हैं. तो डायमेंशंस, अगर कोई डायमेंशनलेस क्वांटिटी है तो उसका डायमेंशन हम यूज नहीं कर सकते हैं. जैसे स्ट्रेस. ओके, अगर हम, आपको अभी तक ये सिलेबस में नहीं है पर आगे आपको आएगा अगले सिलेबस में या नेक्स्ट कुछ टॉपिक्स में. Stress does not have, not stress, it is a strain. Okay, strain is one of the physical quantity which is unitless and dimensionless because it is a ratio of length to length. Okay, then it is a ratio of length to length, then it does not have any unit, and if it does not have any unit then it is a dimensionless quantity also. तो इस तरह से अगर कोई डायमेंशनलेस क्वांटिटी है तो उसका एनालिसिस आप डायमेंशनल मेथड से नहीं कर सकते. हम कुछ ही देर बाद डायमेंशनल एनालिसिस के वेरियस फॉर्मूला यूज करके बताएंगे कि किस तरह से आप फॉर्मूला करेक्ट या क्या कर सकते हैं डायमेंशन का यूज करके. तो उसका एक ड्रॉबैक मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जो डायमेंशनलेस क्वांटिटी अगर है तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी को हम एनालाइज नहीं कर सकते. उसके बाद अगर सेकंड है तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला हुआ, लॉगरिथमिक फॉर्मूला हुआ या अल्जेब्रिक एक्सपोनेंशियल कोई फॉर्मूला है जैसे e⁻⁻x है, इफ लाइक tan थीटा है, और लॉगरिथमिक है log ऑफ tan थीटा. अगर इस तरह से कोई फॉर्मूले दिए हैं तो इसका भी हम डायमेंशन एनालिसिस के थ्रू इसको भी हम डिराइव नहीं कर सकते. दिस इज द सेकंड ड्रॉबैक ऑफ दिस यूनिट. देन थर्ड वन है कि एक कोई ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट है फॉर्मूले में, दैट इज कॉल्ड एज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट. देखते हैं ना हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, लाइक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास और फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स वेलोसिटी. तो ये जो प्रोपोर्शनलिटी सिंबल होता है, तो जब प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हम निकालते हैं तो उसकी जगह हम क्या करते हैं, कुछ तो भी एक कांस्टेंट वहां पुटअप करते हैं. सपोज आई एम सेइंग दैट look at here, if I say that A is directly proportional to B, then to remove this proportionality symbol we can write A is equal to KB, where K is the proportionality constant. अब ये constant value अगर डायमेंशनल एनालिसिस की हम बात करते हैं तो अगर ये constant value पर्टिकुलर constant नहीं है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी नहीं है, जैसे अगर मैंने कहा है तो Ke is directly proportional to mass or Ke is directly proportional to v square. Then what is the formula of kinetic energy? Kinetic energy is equal to half mv square. This formula we know. अब mass से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, v स्क्वायर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जब ये प्रोपोर्शनलिटी सिंबल निकालते हैं तो हमने हाफ लिखा. अब ये हाफ कहाँ से आया? दिस इज प्रूफ एक्सपेरिमेंटली. ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करके वैल्यू आती है. ये दूसरा पार्ट हुआ, लेकिन हमें यहाँ क्या डिस्कस करना है कि जब ये हाफ वैल्यू आई तो अब इसको कोई यूनिट है क्या? इट इज वन ऑफ द कांस्टेंट वैल्यू. अगर ये कांस्टेंट है तो ठीक है, लेकिन कई फॉर्मूले ऐसे हैं कि जिसमें ये वैल्यू कांस्टेंट नहीं आती है, वो भी एक फिजिकल क्वांटिटी आती है, लाइक न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. व्हाट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस and force is inversely proportional to square of the distance between them. Then we can write it as, कैसे rearrange करते हैं हम इसे rearrange करते हैं
तो हम इसे लिखते हैं फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ओके, अब जब हम ये लिखते हैं देन फोर्स इज इक्वल टू, यहाँ क्या लिखते हैं हम, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू m1 इनटू m2 अपॉन r स्क्वायर। नाउ दिस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज नॉट अ यूनिटलेस क्वांटिटी, इट हैज सम यूनिट। ओके, और इसकी वैल्यू है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। मतलब क्या हुआ कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ये जो वैल्यू है ये कोई पर्टिकुलर कांस्टेंट नहीं है और ये कोई डायमेंशनलेस क्वांटिटी नहीं है। ऐसा जब कोई फॉर्मूला तैयार होगा कि जिसका प्रोपोर्शनलिटी सिंबल एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी नहीं है तो उसको हम डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके डिराइव नहीं कर सकते। ये है इसका थर्ड ड्रॉबैक। ओके, और फिर कुछ डायमेंशंस ऐसे हैं कि जो पॉसिबल नहीं होते हैं, उसका एक फॉर्मूला लेते हैं तो वो डिराइव होता है और पर्टिकुलर एक फॉर्मूला लेते हैं तो डिराइव नहीं हो सकता है। ऐसे भी बहुत सारी चीजें डायमेंशनल एनालिसिस के ड्रॉबैक्स में आती है। तो ये हो गया ड्रॉबैक्स। अब डायमेंशंस हमने निकाल लिए, आपको डायमेंशन समझ में आ चुका है कि डायमेंशंस क्या होता है, और उसके बाद हमने उसके ड्रॉबैक भी देखे हैं। और अब हम देखेंगे द यूज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ओके, सो लेट अस डिस्कस। So let us discuss about dimensional analysis. अब use of dimensional analysis जो है तो उसमें पहले हम देखेंगे to check the correctness of the formula। यानी फॉर्मूला जो भी अभी तक हम यूज कर रहे थे डायरेक्टली हमने वो यूज किया है कि यस f इज इक्वल टू ma है, देन वी डायरेक्टली अज्यूम दैट f इज इक्वल टू ma। ke इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर है तो हमने डायरेक्टली अज्यूम किया ke इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। काइनेमेटिक इक्वेशंस है v इज इक्वल टू u प्लस at, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये फॉर्मूले जैसे आए हैं आप तक, अभी तक जैसे आपने टेक्स्ट बुक में आए तो डायरेक्टली आपने यूज किया, यू नेवर ट्राई टू चेक इट वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। सो बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस एनी फॉर्मूला विच इज गोइंग टू डिराइव whether it is check correct or not, you can check by using the dimensional analysis. So the first point is to check the correctness, whether the formula is correct you can see by using dimensional analysis. So let us consider the first formula that we all already know and very general formula, that is f is equal to ma। ओके, अब जैसे हमने देखा कि हम डायमेंशन सभी के निकाल सकते हैं, जो भी फॉर्मूला आपको दिया हुआ है वो सभी फॉर्मूले से आप उसका डायमेंशन निकाल सकते हैं। अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन का, फोर्स के डायमेंशन निकाले थे। ठीक है, तो वो इस तरह से हमें टेबुलेटेड फॉर्म में पूरे डायमेंशन आपको निकालना है। और जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि लॉग टेबल में भी वो फॉर्मूले दिए हुए हैं, लेकिन आपको वो खुद को डिराइव करते आना चाहिए और जस्ट क्रॉस चेक वेदर यू डिराइव द डायमेंशंस आर करेक्ट और नॉट। ओके, और ऐसे एक टेबुलेटेड फॉर्म में आपको उसको बना के रखना है और रेगुलरली उसको रिवाइज करके वो डायमेंशंस लर्न करना है। ऑल द डायमेंशंस यू शुड लर्न। ओके, सो टू टेस्ट द करेक्टनेस ऑफ द formula, let us test this formula whether it is correct or not. So first of all you should consider left hand side. अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, फोर्स है। ओके, अब यहाँ हमें फोर्स का फॉर्मूला m इंटू ए इससे यूज करके नहीं निकालना है। अब डायरेक्टली हमें पता है डायमेंशन ऑफ फोर्स ये, तो ये हमें यूज करना है। नाउ डायमेंशन ऑफ फोर्स कितना है, m1 l1 t minus 2, whether I am correct or not, m1 l1 t minus 2। now give it equation number 1। अब हमें इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देना है। now go to the right hand side। ओके, अब राइट हैंड साइड में क्या करना है, you have to assume m into a। ओके, तो आपको क्या करना है, इसमें डायमेंशन ऑफ m into डायमेंशन ऑफ a। ओके, m का भी डायमेंशन निकालना है, a का भी डायमेंशन निकालना है।
तो m का डायमेंशन कितना हुआ, m यानी मास है, तो मास का डायमेंशन मीन्स L0 m1 t0. Okay, this is the dimension of mass. Now dimension of acceleration is, what is the dimension of acceleration? It is meter per second square, means L1 m0 t minus 2. Okay, now by using indices rule पता है हमें, a to the power m into a to the power n, अगर ऐसा रहा तो क्या होता है, a to the power m plus n. Then by using indices rule हमें यहाँ L m t इस तरह से लिखना है. अब देखिए 0 प्लस 1 कितना हुआ 1, 1 प्लस 0 कितना हुआ 1, और 0 प्लस -2 मीन्स इट विल बिकम -2. तो डायमेंशन क्या हुआ L1 m1 t minus 2. This is the dimension of RHS, that is equation number 2. Now check it here, from equation 1 and 2 the both side have same dimension. अगर दोनों साइड के डायमेंशन एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, यानी जितना ये साइड का डायमेंशन है उतना ही RHS का डायमेंशन अगर है, then you can say the formula is correct, otherwise the formula is not correct. Means डायमेंशनल एनालिसिस के सहारे पे हम आप बता सकते हैं कि F इज इक्वल टू m इंटू ए है क्या. बहुत सी बार कुछ फॉर्मूले ऐसे होते हैं कि हम यहाँ a स्क्वायर लिख सकते हैं या m स्क्वायर लिख सकते हैं या m अपॉन a लिख सकते हैं, ऐसे वेरियस फॉर्मूले आप तैयार करते हैं. तो उसमें ये फॉर्मूला किस तरह से करेक्ट आएगा, तो ये फॉर्मूला हम डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू चेक कर सकते हैं. एक और एग्जाम्पल हम लेंगे और एक और एग्जाम्पल लेके हम प्रूव करेंगे फिर से कि हम फॉर्मूला करेक्ट कर सकते हैं. ओके, so let us consider the kinematical equation. What is the first kinematical equation? A first kinematical equation क्या है, v is equal to u plus at. This is the first kinematic equation. Now what is v? V is the velocity, u is the initial velocity, this is the final velocity, a is the acceleration, t is the time. Okay, so let us consider left hand side. What is left hand side? Left hand side is the velocity. The dimension of velocity, क्या है velocity का dimension? L1 m0 t minus 1. Okay, so L1 m0 t minus 1 is the dimension of left hand side. Give it equation number 1. Okay, now consider right hand side. Okay, अब right hand side में क्या लेंगे हम, dimension of u plus dimension of product of a into t. ओके, देखिए थोड़ा सा ध्यान रखिए कि जहां आपको सिंबल्स आ रहे हैं अल्जेब्रिक सिंबल्स, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, देन यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट इट इन सच मैनर. ओके, नाउ डायमेंशन ऑफ u, what is, it is also one of the initial velocity, then its dimension become L1 m0 t minus 1. okay, plus now give it. okay, अब जब आपको ये देखना है कि ये तीनों अलग अलग आएंगे, जैसे हम उसमें प्रोडक्ट लिया था तो ये प्रोडक्ट मिलके एक हुआ था. अब जैसे ये RHS है तो RHS में हम इसको दो भाग में डिवाइड करेंगे, पहले u में और फिर at में. अब अगर हमें सिर्फ u लेते हैं तो u का डायमेंशन कितना आया, L1 m0 t1, यानी जितना एक टर्म है उतने ही दूसरे टर्म का डायमेंशन उतना ही आया है. गिव इट इक्वेशन नंबर 2. अब RHS में हम तीसरा पार्ट लेंगे, दैट इज a इंटू टी. प्रोडक्ट एप्लीकेबल है, लेकिन यहाँ अगर एडिशन या सब्सट्रैक्शन आता है तो आपको उसे सेपरेट करना है. तो a इंटू टी का डायमेंशन देखिए अब किस तरह से आएगा, दैट इज डायमेंशन ऑफ a इंटू डायमेंशन ऑफ टी. इस तरह से हो चुका है. अब डायमेंशन ऑफ a इंटू डायमेंशन ऑफ टी कितना होगा, देखिए डायमेंशन ऑफ a है L1 m0 t minus 2. This is the dimension of acceleration, and dimension of time become L0 m0 and t1. ओके, अब यहाँ जब आप इंडक्सिस रूल अप्लीकेबल करेंगे तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा आपका, L1 m0 and t minus 2 plus 1 बिकम कितना होगा
t माइनस 1, ये वेट इक्वेशन नंबर 3। अब ये तीनों इक्वेशन में देखिए L1 m0 t माइनस 1, L1 m0 t माइनस 1, L1 m0 t माइनस 1, यानी कहीं पे भी स्क्वायर नहीं है, कहीं पे भी अपॉन में नहीं है, ये is equal to this one is equal to this one, means all the formula is balancing by using dimensional analysis. So the formula is correct, means in such way you can check the correctness of the formula. Now another one is to find the relation between different system of unit. अब different system of units कौन कौन सी होती है हमारी different system of units? We have different system of units are C, G, S, M, K, S, F, P, S and SI. Okay, ये different system of unit है। जैसे हमने कहा है कि 1 मीटर यानी 10 to the power 2 सेंटीमीटर, ये जनरल है। किलोमीटर का मीटर में करना है, किलोग्राम का ग्राम में करना है, तो ये हम इजीली कर सकते हैं। लेकिन जैसे कुछ हैवी डिराइव यूनिट्स जब आते हैं तो डिराइव यूनिट पे हम बहुत सी बार यूज करते हैं, या आप 10th स्टैंडर्ड तक खुद यूज कर चुके हैं, आपके टीचर ने बोला या बुक में दिया हुआ है और आपने डायरेक्टली यूज किया है, लेकिन वो कैसे आता है ये हम आज डिस्कस करेंगे। द डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट के रिलेशंस कैसे होते हैं। ओके, तो डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स के रिलेशन देखने के लिए हम फर्स्ट रिलेशन देखेंगे। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर कितना होता है? 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 जूल, सॉरी डाइन। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। अब ये रिलेशन हमने बहुत बार यूज किया है, लेकिन ये कहाँ से आया, कैसे आया, इसका प्रूफ यही क्यों है कि 10 टू द पावर 5 ही कहाँ से आया। व्हाई नॉट इट इज -5, व्हाई नॉट इट इज 4 और 6 और एनी डिफरेंट वैल्यू, यहाँ 5 ही कैसे आई है, ये हम रिलेशन देखेंगे। अब 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इट इज अ मैथमेटिकल डेरिवेशन, और अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो रिपीट देखिए, कोई भी चीज, इसकी कोई भी स्टेप मिस मत कीजिए। एग्जाम में ये पूछे जाने वाले डेरिवेशंस है और बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस है। सो लेट अस डिस्कस। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। अब इसके लिए हमें क्या करना है? 1 न्यूटन 1। अब न्यूटन मीन्स क्या है? इट इज द यूनिट ऑफ फोर्स एंड इट इज ऑल्सो यूनिट ऑफ फोर्स। लेकिन अब 10 टू द पावर 5 डाइन हमें पता नहीं है, सो वी विल अज्यूम 1 न्यूटन इज इक्वल टू x डाइन। 1 न्यूटन कितना डाइन में कन्वर्ट होगा ये हमें पता नहीं, इसलिए हमने क्या किया है, और x वी हैव टू कैलकुलेट हियर, सो दैट 1 न्यूटन, ओके, 1 न्यूटन मीन्स न्यूटन इज द यूनिट ऑफ what? It is the unit of force, it is also unit of force, it is the SI unit of force, it is the CGS unit of force. So let us express it in terms of dimension. What it will become? The dimension of force become L1 M1 T minus 2 is equal to X in bracket L1 M1 T minus 2। एक ध्यान रखना कि यूनिट चेंज होंगे लेकिन डायमेंशंस किसी भी सिस्टम ऑफ यूनिट में सेम रहने वाले हैं, डायमेंशंस चेंज नहीं होते हैं। आप डाइन में भी फोर्स मेजर कर रहे हैं तो भी उसका फोर्स का डायमेंशन यही रहेगा, आप न्यूटन में फोर्स मेजर कर रहे हैं तो भी उसका डायमेंशन उतना ही रहेगा। आप किलोमीटर में मेजर कर रहे हैं या मीटर में मेजर कर रहे हैं तो भी लेंथ का यूनिट उतना ही रहेगा। आप किलोग्राम में मेजर कर रहे हो या मिलीग्राम में मेजर कर रहे हो फिर भी उसका यूनिट उतना ही रहेगा। तो प्लीज रिमेम्बर कि डायमेंशंस चेंज नहीं होते हैं, आपके यूनिट, ये सिस्टम ऑफ यूनिट में चेंज होंगे। ओके, अब L दैट इज लेंथ। ओके, अब देखिए ये जो लेंथ है यहाँ पे हम SI सिस्टम यूज कर रहे हैं। इफ यू आर यूजिंग द SI सिस्टम मीन्स इट्स यूनिट बिकम द यूनिट ऑफ लेंथ बिकम मीटर, okay, the unit of mass become kilogram and the unit of time become second, okay, and its unit become m1 kg1 and s minus 2।
okay, is equal to x in bracket. Now this is the CGS system. If it is a CGS system, then the unit of length, then the unit of length become centimeter, limit of mass become gram, and unit of time become second. Then centimeter to the power 1, gram to the power 1, and second to the power -2. Okay, now you have to maintain the relation between this. We want to calculate x, so we keep it on one side and remaining all term we are taking on another side. So let us consider therefore x is equal to what happened? Meter to the power 1, kilogram to the power 1, second to the power -2 upon this dimension is going to the denominator of this, then it will become centimeter to the power 1, gram to the power 1, and second to the power -2. Okay, now in the next step, excuse me, just a minute. Extremely sorry students. So we will continue here. X is equal to mass kilogram second. It is the SI system. This is the CGS system. Okay. अब हमें क्या करना है, ये जो डायमेंशन का सिंबल है ये यहाँ से हटा देना है, बिकॉज यहाँ हम कहीं तो भी अल्जेब्रिक डिवीजन में आ चुके हैं, अल्जेब्रिक सिंबल्स हमने यूज कर रहे हैं, तो हमें ये डायमेंशंस रिमूव करना है. सो वी विल रिमूव इट एंड वी विल सेपरेट द यूनिट्स बाय इंडिविजुअल. मीन्स लेंथ का यूनिट लेंथ के साथ, मास का यूनिट मास के साथ, और टाइम का यूनिट टाइम के साथ लेंगे. तो एक्स का यूनिट आप देखिए ऐसा हो जाएगा कि मीटर अपॉन सेंटीमीटर इंटू किलोग्राम अपॉन ग्राम इंटू सेकंड टू द पावर -2 अपॉन सेकंड टू द पावर -2. इस तरह से हमने क्या किया, मास का सॉरी लेंथ का लेंथ के साथ सेपरेट किया, किलोग्राम का ग्राम के साथ, मीन्स मास की यूनिट सेपरेट किए और टाइम का यूनिट सेपरेट किया. अब हमें क्या करना है कि देखिए कि इन दोनों की पावर तो सेम है, सो इट गेट कैंसल एंड इट विल बिकम 1. अब ये वन आ चुका है. अब यहाँ मीटर और सेंटीमीटर में क्या रिलेशन है, अभी मैंने आपको बताया 1 मीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर. सो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर. ये सेंटीमीटर तो एज इट इज रहेगा, लेकिन मीटर जो है 1 मीटर, इसे हम 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर लिख सकते हैं. ओके, इनटू 1 किलोग्राम, तो ग्राम में अगर हमें कन्वर्ट करना है तो कितना आएगा, 10 टू द पावर 3 ग्राम अपॉन ग्राम, और इनटू ये जो है ये आएगा 1. ओके, अब देखिए x इज इक्वल टू कितना आया है, हम फिर से यहाँ डिवाइड करते हैं. ओके, अब ये x इज इक्वल टू कितना हो चुका है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर गेट कैंसल, यूनिट सेम है तो कैंसल हो जाएगी, ये भी यूनिट सेम है सो कैंसल हो जाएगी. तो हमारे पास क्या बचा, 10 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 1. देखिए यहाँ है 10 टू द पावर 2, यहाँ है 10 टू द पावर 3 और यहाँ है 1. तो ये हमारा सिंबल है. फिर से हम इंडाइसिस रूल यूज करेंगे, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर 5. ओके, बट व्हाट इज x, हमने अज्यूम क्या किया था, 1 न्यूटन इज इक्वल टू x टाइम, ये हमने अज्यूम किया था. तो हमें यहाँ दिखाना है कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन. इस तरह से हमने जो आज तक ये यूज करते आए हैं ये हमने यूज किया है, दैट इज 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन. आपको अगर एक बार की स्टेप में थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है तो ये वीडियो फिर से रिपीट में देखिए और ये किस तरह से सॉल्व किया है आप थोड़ा ट्राई कीजिए. और इसी के साथ में एज अ प्रैक्टिस, फॉर अ प्रैक्टिस, you just solve one derivation, that is 1 joule is equal to 10 to the power 7 earth. काइनेटिक एनर्जी है, एनर्जी का यूनिट है ये, काइनेटिक रहो या कोई भी रहो, एनर्जी का यूनिट जूल है और एनर्जी का ही यूनिट अर्थ है. तो इसी तरह से आपको इस मेथड में सॉल्व करना है. दोनों के डायमेंशंस लिखना है, दोनों के यूनिट्स लिखना है और यूनिट्स के साथ में उसको सेपरेट करके आपको इस तरह से सॉल्व करना है. और 1 जूल इक्वल टू एक्स अर्थ, इस तरह से आपको लेके x की वैल्यू 10 टू द पावर 7 आती है क्या, ये आपको ट्राई करना है.
If you have any problem, then you can drop a message in a comment box also. And if you know me well, then and if you have my number, personal number, then you can drop a message on WhatsApp or a text message also. प्लीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये मैथमेटिकल डेरिवेशन आपको 11th के एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो प्लीज़ इसे ध्यान से देखिए। तो हमारा सेकंड डायमेंशनल एनालिसिस जो था, पहला जो हमने देखा वो देखा था टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द फॉर्मूला, और सेकंड हमने देखा है टू सी द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट। एक एमकेएस सिस्टम है, एक सीजीएस सिस्टम है, तो इन दोनों का रिलेशन हम डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू निकाल सकते हैं, ये हमने यहाँ देखा है। ओके, अब हम थर्ड देखेंगे कि कोई फॉर्मूला तैयार कर सकते हैं क्या। मुझे सिर्फ इतना पता है कि इसका इसके साथ रिलेशन है, ऐसा अगर मुझे कोई क्वांटिटी पता है, लेकिन उसका एक्चुअल फॉर्मूला क्या है ये मुझे पता नहीं, तो ये भी मैं उससे डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके हम निकाल सकते हैं। सो लेट अस सी द थर्ड यूज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। इफ यू लाइक माय वीडियो, प्लीज लाइक it, please subscribe my channel and please share the video with your friends and family. Okay, so let us see the third point of dimensional analysis that to use or to establish the relation between physical quantities. कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं तो उसके बीच का रिलेशन क्या है ये हमें निकालना है। अब आपके बोर्ड के टेक्स्ट में एक टी टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम का दिया है, तो वो आपके पास ऑलरेडी है, तो उसके अलावा मैं आपको एक एग्जांपल दे के देती हूँ, तो आपके पास 2 से 3 एग्जांपल जब सॉल्व करने के रहेंगे तो आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो पाएगी। सिमिलर ऐसा ही उसको भी आपको इम्प्लीमेंट करना है। तो आप देखिए, हम एक रिलेशन, एक जनरल रिलेशन लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ऑल वी वेल नो दैट हाफ mv²। ओके, ये हमें पता है। अब हम ऐसा पता करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता नहीं। ओके, वी डोंट नो, जस्ट वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी का मास के साथ रिलेशन आता है और काइनेटिक एनर्जी का वेलोसिटी के साथ रिलेशन आता है। बट क्या रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर रूट का है, ये हमें पता है। ओके, तो हम सिर्फ एक अज्यूम करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी, आपको न्यूमेरिकल्स या मैथमेटिकल डेरिवेशंस जब आएंगे तो उसमें क्या दिया होता है कि काइनेटिक एनर्जी एक टर्म दी है, उसमें वो बॉडी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, KE इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास एंड हैविंग वेलोसिटी v, एंड डिराइव इट्स रिलेशन और एस्टैब्लिश इट्स रिलेशन बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। तो आपको न्यूमेरिकल में क्या क्या दिया है, काइनेटिक एनर्जी दी है और उसमें बॉडी का मास और बॉडी की वेलोसिटी। हमें रिलेशन पता नहीं, सो लेट अस अज्यूम, हम डायरेक्टली अज्यूम करेंगे काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। हम वेलोसिटी स्क्वायर लेंगे नहीं, आप ध्यान रखिए, हमें ये रिलेशन पता नहीं, हम ये अज्यूम करके चलेंगे कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। सो अब हम क्या करेंगे, जब काइनेटिक एनर्जी यहाँ डिराइव है और काइनेटिक एनर्जी का अगर हमें रिलेशन निकालना है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv², तो अब उसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को कंबाइन करेंगे। ये दोनों को जैसा ही कंबाइन होगा तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू वॉल्यूम। ओके, अब मास इनटू वॉल्यूम की काइनेटिक एनर्जी हम डिस्कस कर रहे हैं। अब इसका हम करेक्टनेस से फॉर्मूला अगर लिए तो करेक्टनेस से फॉर्मूला से ये देखिए कैसा हो गया, काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन क्या है, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एनर्जी, टेल मी व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, whether you know it, the dimension of kinetic energy is m1 l2 t minus 2 l2 m1 t minus 2, this is the dimension of kinetic energy। अब जब हम प्रोपोर्शनलिटी सिंबल निकालेंगे तो यहाँ हम कुछ तो भी k ले लेंगे, दैट इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और उसके बाद यहाँ हम लेंगे डायमेंशन ऑफ मास। अब डायमेंशन ऑफ मास कितना है, L0 m1 t0, दिस इज द डायमेंशन ऑफ मास।
और डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी कितना है। अब हमें इसके पावर पता नहीं है तो सॉरी, हम इसे लेंगे m टू दी पावर x एंड v टू दी पावर y, इस तरह से लिया जाएगा। तो फिर ये m टू दी पावर x और v टू दी पावर y यहाँ हो जाएगा, क्योंकि इसकी पावर हमें कैलकुलेट करना है और वो पावर ही उसका रिलेशन शो करेगी। तो अब ये मास जो है, तो मास का डायमेंशन है, तो इसको हम पावर देंगे x और फिर उसके साथ में अब वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है L1 m0 t माइनस 1 और इसका पावर देंगे हम y। देखिए हमने क्या किया, हमको रिलेशन पता नहीं इसलिए हमने डायरेक्टली टू दी पावर समथिंग x एंड y दे दिया एंड द वैल्यू ऑफ x एंड y वी आर गोइंग टू कैलकुलेट हियर। सो द डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी बिकम L2 m1 t माइनस 2 इज इक्वल टू दिस k इज एज इट इज। और अब हम ये k लिखेंगे ही नहीं क्योंकि ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, उसकी हमें जरूरत नहीं। हमें काइनेटिक एनर्जी का मास और वेलोसिटी के साथ क्या रिलेशन है ये कैलकुलेट करना है। तो हम k यहाँ लिखेंगे नहीं, हम आखिरी में वो k एज अ k ले लेंगे। सो देखिए अब यहाँ पे अब ये हम इंडाइसिस रूल यूज करेंगे, a टू द पावर m टू द पावर n क्या होता है a टू द पावर m इंटू n। द सेम इंडाइसिस रूल ये दिया है, उसको टू दी पावर x दिया है, तो क्या हो जाएगा वह l टू दी पावर 0 इंटू x 0, m टू दी पावर 1 इंटू x, व्हाट इट विल बिकम m टू दी पावर x। देखिए ये चेंजेस आपको यहाँ करना है, l टू दी पावर एक्सट्रीमली सॉरी फॉर योर डिस्टर्बेंस, m टू दी पावर 1 इंटू x बिकम x एंड t टू दी पावर यार कहाँ में रखे यार तुम्हारा ऑर्डर। Extremely sorry, just a minute. I'm extremely sorry for trouble or disturbance you have. Okay. और अब m to the power x हो गया और t to the power 0 into x. What it will become? It will become t to the power 0. Look at here. अब वैसा ही हम यहाँ भी इम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा l to the power y m to the power 0 t to the power minus y। देखिए ये रिलेशन आ चुका है। अब हम इसे कंबाइन करेंगे a to the power m into a to the power n। ये अगर रूल लेते हैं हम तो L2 m1 t minus 2 इज इक्वल टू कितना हो गया, देखिए l to the power 0 plus y that is y, m to the power x plus 0 means m x and t to the power 0 plus minus y means t to the power minus। देखिए अब ये रिलेशन किस तरह से है, यहाँ l to the power 2 दिया है और यहाँ l to the power y दिया है, m to the power 1 दिया है, n to the power x दिया है, t to the power minus 2 दिया है, t to the power minus y दिया है। जब ये सिंबल इक्वल है इट मीन्स क्या कि ये पावर इक्वल है। अगर इनके पावर इक्वल आते हैं तो ही हम इक्वलिटी सिंबल यूज कर सकेंगे। इट मीन्स क्या हुआ कि n n है तो y की वैल्यू कितनी होगी, इसे आपको कंपेयर करना है। देन y इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 1 एंड माइनस y इज इक्वल टू माइनस 2। ओके, तो इस पर से हमारी वैल्यू निकल गई x और y की। यहाँ पे भी अगर आप देखिए माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2 मीन्स y इज इक्वल टू 2। तो हमने कौन सी दो वैल्यू निकाली, y इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 1। जो हम लीनियर इक्वेशंस जैसे निकालते हैं ना उसी तरह से आपको ये लीनियर इक्वेशंस निकालने हैं। ओके, ये लीनियर इक्वेशंस जब हम निकले हैं तो अब ये वैल्यू अब हम यहाँ पुटअप करेंगे। देखिए अब ये इक्वेशंस क्या आ चुका है, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m टू द पावर x इनटू v टू द पावर y। ओके, दैट इज काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m टू द पावर 1 इनटू v टू द पावर 2। x और y की वैल्यू पुटअप की हमने, m की वैल्यू x की कितनी आई 1, y की वैल्यू कितनी है 2। तो इसका मतलब क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू k m v स्क्वायर वेयर द वैल्यू ऑफ k इज हाफ, दैट इज काइनेटिक एनर्जी बिकम हाफ m v स्क्वायर। इस तरह से ये वैल्यू होती है। अब ये हाफ कैसे आती है, बहुत सी जगह आपने देखा 2 पाई है, पाई है, 1/2 पाई, 2 उसके 3 4 ऐसी अलग अलग वैल्यू आती है। तो ये डिराइव करने का फॉर्मूला अलग है और ये एक्सपेरिमेंटली डिराइव की जाती है कांस्टेंट की वैल्यू। इट इज नॉट इन योर सिलेबस हाउ टू डिराइव द कांस्टेंट। आपके सिलेबस में डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू
फॉर्मूला में कैसे रिलेशन है, जो वेरिएबल टर्म है, फिजिकल क्वांटिटी होती है, वो कैसे डिराइव की जाती है, वो इस तरह से दी जाती है। और उसके सहाय से अब हमने क्या किया, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू kmv²। अगर ये v की वैल्यू √2 आती थी या -2 आती थी, सपोज y की -2 आती थी, तो फॉर्मूला क्या होता था हमारा, अगर y की वैल्यू -2 आती है देन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू m/v² आता था, क्योंकि -2 अगर ऊपर है तो नीचे जाके वो +2 आता था, समझे। अगर m की वैल्यू क्यूब आती थी तो m³ x की वैल्यू अगर 3 आती थी तो m³/v² होता था। यानी देखिए कि जब ये पावर की वैल्यू आप डायमेंशनल एनालिसिस से निकाल सकते हैं तो आप एक फॉर्मूला तैयार कर सकते हैं, टेंटेटिव फॉर्मूला विथ सम कांस्टेंट वैल्यूज। तो आप ऐसा फॉर्मूले में रिलेशंस तैयार कर सकते हैं। एक जो टेक्स्ट बुक में आपको दिया है वो दिया है T इज इक्वल टू L और G, सिंपल पेंडुलम का लेंथ दी है आपको, उसका टाइम पीरियड T अज्यूम किया है, और G इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और उसका रिलेशन आपको वहां निकाल के दे चुका है। उसका और एक एग्जांपल बोल के मैंने आपको डिराइव किया है। अब आपके पास ये और वो मिलके 2 डेरिवेशन ऑलरेडी है, तो आप प्रैक्टिस कीजिए और प्रैक्टिस करके डायमेंशनल एनालिसिस की तीनों मेथड टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला, to obtain the relation between different system of unit and to obtain the relation between physical quantities, ये तीनों डेरिवेशंस होके आज के हमने पूरे वीडियो में डायमेंशंस, उसका हाउ टू डिराइव द डायमेंशंस, हाउ टू ऑब्टेन द डायमेंशंस, then limits of dimensions or demerits of dimensions, and then dimensional analysis in which we derive the 3 uses of dimensional analysis। तो आज का अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर माय वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, बाय। मम्मी